this kind of protest is also reminiscent of what we had seen a few years ago in Hong Kong, where the youth had taken to the streets and they were also against the sort of crackdown on freedom of speech and expression. But you being part of the political spectrum in Nepal, what have you been observing under the regime of the KP Sharma Oli government? Many youth that we have been interacting with have been very vocal about how there is this conscious crackdown when it comes to freedom of speech and expression. Also, many are saying that why is TikTok being given a different treatment when it comes to these banning of the social media platforms, 26 of them in all. See, TikTok was banned earlier during Prachanda's government. It was banned. So after they, I think, registered, the ban was lifted. And at that time also the public had expressed a lot of distress over it. See, meanwhile, during this protest, I think, I can sense dictatorship. Whether it was RPP's demonstration, Rashtriya Prajatantra Party's demonstration against corruption a few months back, there was a huge infiltration by the government to stop the demonstrations. Why do you say so? Why do you say so? Why do you say so? Because we have seen, because it was just a peaceful demonstration, and just today, they are youths, they are kids. My children are there in the protest. 3 of my children have gone to the streets, and they all were clearly, very clear that it's going to be a peaceful demonstration. They are going to chant slogans. They are going to, try to aware the government about what is going wrong. But during the protest, what we could see from outside is the government selectively allows certain agitators to infiltrate the spaces like the parliament. Have you ever seen any demonstration, no matter how big of a party has led it, have you ever seen them reaching close to the parliament? Right, so those are the scenes coming in from Kathmandu, ladies and gentlemen, as several student groups have been mobilized against the Oli government in Nepal after the government's ban on at least 26 social media platforms. And more breaking news that's coming in. 42 people have been injured as per reports as the violent demonstrations continue. And reports also suggest that firing has taken place in Kathmandu, where reports suggest that 7 people have lost their lives in police firing, and the curfew will now be in place till 10 p.m. Tonight. That is the current order, as the Nepal army has also been mobilized outside the parliament to safeguard parliament. To get more details from Ground Zero, Jitendra Jha continues to be with us on the broadcast, reporting from Kathmandu. Jitendra ji, ये पूरे सिचुएशन को देख के आप अभी भी कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन हुआ है ग्राउंड पे, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ नहीं दिख रहा, पर केपी ओली की पोजीशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? केपी शर्मा ओली ने सीपीएन-यूएमएल जो उनका नेकपा एमाले सीपीएन-यूएमएल जो उनका पॉलिटिकल पार्टी का एक इंटरनल प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया को हम कानून के दायरा में लाना चाहते हैं, नेपाल के में दर्ता होने के लिए जो कह रहे हैं, तो कानून के दायरा में लाने के लिए जो हम कदम चाल रहे हैं, उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अवरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे जो उनका एक स्वभाव है कि कथा और विभिन्न स्टोरीज से बताया कि कैसे जो है इंटेलेक्चुअल्स जो है सरकार के इस कदम को विरोध कर रहे हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने टारगेट किया इंटेलेक्चुअल्स को, और जो जेन जी जनरेशन है जो कह रहा है कि ये गलत है, उनको भी केपी शर्मा ओली जी ने कहा कि ऐसा आप समझ नहीं रहे हैं कि हमने क्यों किया ऐसा करके। तो एक ये प्रधानमंत्री की ओर से भी इसको सरकार अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रयोग किया। अब इससे क्या हुआ, तो जो सहज स्थिति बनना चाहिए था, सरकार जो है इसको संबोधन करना चाहती है, सरकार जो है संवेदनशील है, ये मैसेज नहीं गया। तो एक उनका जो भाषण है ये भी अभी जो देखने को मिल रहा है कि जो उससे जो है वो उत्तेजित हुए और जो प्रोटेस्ट का एक माहौल बना। अभी जो माहौल क्या है कि पोखरा में, विराटनगर में भी प्रोटेस्ट हुआ है, पोखरा में भी कर्फ्यू लगा है। आपको मालूम ही होगा, पोखरा जो है एक नेपाल का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर जो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर भी काठमांडू जैसा ही माहौल बनने की कगार पर है। वहाँ पर भी यूथ ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर भी सरकारी जो ऑफिस हैं, सरकारी जो संयंत्र है, उसकी सुरक्षा के लिए कह के सरकार ने कर्फ्यू जारी किया है।
जी, और जितेंद्र जी ये भी बताइए कि अभी इस प्रोटेस्ट का आगे का रास्ता क्या है? इसका एस्केलेशन तो हो ही रहा है अक्रॉस द नेशन ऑफ नेपाल, ये बाकी सिटीज़ में भी स्प्रेड कर रहा है। अगले 2-3 दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एस्केलेट ही होने वाला है? क्या प्लान्स है कि और फोर्सेस ग्राउंड पे मोबिलाइज हो ताकि एक सीरियस क्रैकडाउन हो जाए? अभी भी पुलिस फायरिंग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आपने हमें बताया कि 7 लोगों की मौत हो गई है ग्राउंड पे। इसका आगे जाके गेम प्लान क्या है गवर्नमेंट का? जितेंद्र झा, कैन यू हियर मी? आगे जो नेपाल में जो महानगर है, जो मेट्रो सिटी है, वहां पर ये प्रदर्शन बढ़ेगा। जैसे पोखरा और काठमांडू में देखने को मिला, तो विराटनगर में और विराटनगर जैसा अन्य जो मेट्रो सिटी है नेपाल के, जो महानगर एरिया है, वीरगंज है, अन्य जो है, तो इन जगहों पर जो है प्रोटेस्ट बढ़ने की संभावना है। और जहां पर कैंपस है, जहां पर ज्यादा जो स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स हैं, जहां पर जो है एकजुट हो सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जो सहज तरीका से आ सकते हैं, तो उस जगह पर जो है प्रोटेस्ट होने की संभावना अब बढ़ती दिख रही है। क्योंकि जैसे प्रहरी प्रशासन की तरफ से गोली चलाया गया, प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई है, तो इससे जो है सरकार के विरोध में जो एक अवस्था बन रही थी, वो जो है विरोध फूटने की आसार दिख रही है। जी, और हम ये भी देख रहे हैं कि नेपालीज पार्लियामेंट भी मोबिलाइज हो चुकी है, ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तो है। या प्लीज गो अहेड। अवस्था को देखते हुए कैबिनेट की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आकस्मिक बैठक, इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने अभी बुलाया है कि ये विषय को कैसे हैंडल किया जाए। जो अभी काठमांडू में जो नियंत्रण करने के प्रयास के बावजूद भी नियंत्रण नहीं हो रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसके लिए जो है अभी कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया है, और लगता है कि कुछ डिसीजन अभी काठमांडू की जो असहज अवस्था है, काठमांडू में जो तनावपूर्ण अवस्था है, उस तनावपूर्ण अवस्था के लिए सरकार कुछ डिसीजन कर सकता है। पर ये देखना होगा कि क्या सरकार पीछे हटती है, या सरकार जो है जिस तरीके से बैन किया है 26 सोशल मीडिया साइट्स, तो उनको जो है निरंतर रखता है। Absolutely. We'll have to wait and see what plays out in the wake of that cabinet meeting, that emergency meeting of the Nepalese cabinet on the situation on the ground, as the protests are only escalating over the ban on social media platforms. To get more reports from Ground Zero, my colleague Siddhant Mishra spoke to a journalist from Kathmandu, Raghunath Baijarang, on the situation. Let's listen in. सिचुएशन है वहाँ पे तारीख किया प्रशासन की, हाँ के खिलाफ प्रदर्शन जारी किया है। हाँ। तो तोड़फोड़ चनी चल रहा है। हाँ। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग हाँ पर तो प्रशासन ने सुरक्षा सतर्कता ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया बता रहा है, लेकिन 2 लोग की मौत प्रदर्शनकारी का, हाँ। और रबर की गोली चलाया। कितने लोग घायल हैं? 40+ घायल हो गए। अच्छा, और कितने लोग डेड हैं? सॉरी, कितने लोग डेड हैं? 2 लोग। टू और कुछ जर्नलिस्ट भी घायल हुए हैं। जर्नलिस्ट की 5 और 6 की परिचय खुला है। जर्नलिस्ट अच्छा, डिजिटल मीडिया की और फोटो जर्नलिस्ट, एक लोग रिपोर्टर भी होगा। अच्छा, तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है या सब तितर बितर हो गया? प्रोटेस्ट चल रहा है। नियंत्रण की और प्रशासन कोशिश कर रहा है। गैस रबर की गोली। अच्छा, वो चला रहा है प्रशासन। तो आप इस वक्त स्पॉट पे ही मौजूद हैं? स्पॉट में हॉस्पिटल में हाँ। पैन के साथ स्पॉट में है ना, तो स्पॉट से जोड़ी से हॉस्पिटल।
And more updates coming in from Ground Zero. We're getting reports that the death toll has now gone up to 9 in Nepal as firing continues on the ground as the protests continue to escalate. This is the report coming in from the Nepal police, which has stated that 9 people have lost their lives as the protests continue to turn violent across Nepal, centered in the capital city of Kathmandu. Jitendra Jha continues to be with us on the broadcast. Right, Naveen Jha is also joining us, a local journalist from Kathmandu, to get the latest from Ground Zero. नवीन जी, ये बताइए, अभी ये दिख रहा है कि सिचुएशन और भी गंभीर हो रही है ग्राउंड जीरो से, डेथ टोल अब 9 पे जा चुका है, और क्या जानकारी है आपके पास जैसे ये प्रोटेस्ट एस्केलेट किए जा रहे हैं? अब वायलेंस बहुत जबरदस्त हुआ है और प्रहरी ने गोली चलाया, उसके कारण 9 से 10 लोग अभी तक मर चुके हैं और कमती में 250-300 लोग घायल हुए हैं काठमांडू में। और काठमांडू के बाहर भी बहुत सारे जगह, जैसे पोखरा में भी जस्ट कर्फ्यू लगाया गया है, वहां पर भी गंडकी के चीफ मिनिस्टर के निवास पर तोड़फोड़ किया था प्रदर्शनकारी ने, उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। और दमक में गोली चला है, विराटनगर में प्रहरी ने बहुत सारे प्रोटेस्टरों को घायल कर दिया है। ऐसे काठमांडू के साथ साथ ही काठमांडू से बाहर भी बहुत सारे जगह पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज हुआ था और बहुत सारे जगह पर जेएनजी का जो प्रोटेस्टर सब थे उन सबको घायल किया गया है। और काठमांडू की अवस्था भी कहिए तो बहुत ही बुरे कहिए, यहाँ पर एक किस्म का सरकार के सन्नाटा जैसा है और सरकार 12 बजे से कर्फ्यू लगाया है, लेकिन बानेश्वर में जो संसद भवन है, संसद भवन के पास अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। कर्फ्यू को कोई अवज्ञा किया गया है यहाँ पर प्रोटेस्टर सब द्वारा। और संसद भवन के जो कंपाउंड वाल था, कंपाउंड वाल को बहुत सारे जगह पर तोड़ दिया गया है। संसद भवन के अंदर में कंपाउंड के भीतर में आगजनी किया गया है जब प्रोटेस्टर सब मरने के समाचार आए उसके बाद। और अभी काठमांडू में चारों तरफ कई जो बड़े बड़े सिंह दरबार जो यहाँ के मेन प्रशासनिक निकाय है, वहाँ पर चारों दिश से नेपाल के सेना भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कर्फ्यू लगाया गया है। और काठमांडू में भी बहुत हाई अलर्ट कहिए। और अभी प्रधानमंत्री ने भी इसी को घटना को जो आज हुआ है उसके बाद अभी कैबिनेट कुछ देर के बाद बुलाए हैं और संभवतः उसके बाद कुछ प्रोटेस्टर सबको वार्ता में संभवतः बुलाया जाएगा। Right, thank you Naveen for getting us the latest from Kathmandu. So it seems the violence is only spreading beyond the capital city to several other smaller towns around the capital. The Oli government has now called for a cabinet meeting to assess the next course of action, but you can see how the violence is escalating on the ground. The police have said that 9 people have lost their lives as firing also continues in very sensitive areas in Kathmandu. Jitendra Jha is also joining us on the broadcast, getting us the latest from Kathmandu. तो जितेंद्र जी, अभी हम देख रहे हैं कि ये वायलेंस कैसे स्प्रेड कर रहा है, काठमांडू से भी आगे जाके काफ़ी एरियाज़ में ये स्प्रेड हो चुका है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 अराउंड इंजर हो चुके हैं इस वायलेंस में। पहले भी हमने देखा था कुछ महीने पहले कि प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि ये सडनली ऐसे प्रोटेस्ट कैसे शुरू हो सकते हैं? दिस इज़ क्लियरली as per several reports coming in from Ground Zero, ये क्लियरली लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर फेलियर रह चुका है लोकल फोर्सेस की तरफ से। हाँ, ये जो नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स को जो बैन किया उसके बाद स्थिति तनावग्रस्त हुआ और ये अभी नियंत्रण करने में भी बहुत दिक्कत है अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए। पर ये एक दिन में ऐसा हुआ ऐसा नहीं कह सकते कि इस घटना से ही ऐसा हुआ। पिछले कई वर्षों से नेपाल में विभिन्न ऐसी डिसीजंस हुए गवर्नमेंट का जिससे जो सोशल साइट्स है उनको नकेल कसने का जो है काम शुरू हुआ था। तो इसमें सरकार का कहना है कि वो जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर्ड हो। पर जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं वो नेपाल गवर्नमेंट का नोटिस का कोई वो जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि अब जो है हमें उनको
यहाँ पर बैन कर देना है, अभी उनका जो है नहीं चले ऐसा बना देना है। तो इसके बाद जो है एक गुस्से का माहौल जो है बना, और उसी का जो है रूप देखने को मिला आज काठमांडू की सड़क में। और ये पोखरा, विराटनगर और अन्य जो है महानगर, नेपाल के अन्य महानगर है, उसमें जो है विस्तार होने की कगार पर है। जी, और इसमें कोई हाथ दिख रहा है आपको? आपने पहले कहा था कि ऑपोजिशन पार्टीज का कोई रोल नहीं दिख रहा है, पर कितने प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं नेपाल में, उनके कोई एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसा जेन जी ग्रुप करके है, उन लोगों ने ये माइती घर में आइए हम प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा उन लोगों ने जो आह्वान किया था, उन लोगों का कहना है कि आज की जो घटना हुई है उसमें घुसपैठ हुआ, जो बाहरी कुछ आए और इसको और तनावपूर्ण बना दिया, और नेपाल प्रहरी और जो है सशस्त्र प्रहरी और सरकारी संरचना पर, सरकारी जो है भवन है, उस पर आक्रमण किया गया। पर औपचारिक रूप से फॉर्मली ये जो अभियान है वो जेन जी का अभियान है। जेन जी पुस्ता जो है वो यूनाइट हुए थे, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स जो भी चल रहे हैं, जैसे भाइबर नेपाल में चल रहा है, तो भाइबर में भी बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गया और उसमें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया गया कि इस जगह हमें प्रोटेस्ट में आना है, ऐसा करके। टिकटॉक अभी नेपाल में चल रहा है, तो टिकटॉक से भी ये मैसेज फ्लो हुआ कि इस जगह हमें एक जगह जुटना है और सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन करना है। तो अभी जो फॉर्मली दिख रहा है कि इसमें कोई अपोजिशन पार्टी या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं पर नहीं है। जी जी, एंड नवीन also continues to be with us on the broadcast to get us the latest from Kathmandu. नवीन, आप ये बताइए कि अभी सिचुएशन केपी ओली गवर्नमेंट की कैसी है? ये प्रोटेस्ट एस्केलेट किए जा रहे हैं, 9 लोग मर चुके हैं, उन पे कोई राजनीतिक दबाव क्या बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उनकी? और राजनीतिक रूप में केपी ओली के गवर्नमेंट में जो उनके पार्टी है रूलिंग एमएलए, और सबसे उसके बड़े साझेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ऑलरेडी, कांग्रेस के अंदर से वॉइस आया है कि जो सोशल मीडिया बैन किया गया है उसको तुरंत ओपन किया जाए, और जेएमजे का जो प्रोटेस्टर सब ने जो डिमांड रखे उन सबको संबोधन करने के लिए, उन सबसे संवाद के वातावरण बनाने पर नेपाली कांग्रेस ने भी अनौपचारिक तौर से वहाँ उसके प्रेसिडेंट शेर बहादुर देउवा ने प्रधानमंत्री से बोला है। और कांग्रेस ने कल सुबह अपना पार्टी के वर्किंग कमेटी के मीटिंग भी बुलाए हैं, और उसके मीटिंग से संभवतः वो औपचारिक रूप में फॉर्मली वो अपना वॉइस लाएंगे। और भी पार्टी, इवन आपको जो गवर्नमेंट में यूएमएल बाहेक जो केपी ओली के पार्टी है उसके बाहेक जितने पार्टी है, सभी पार्टी ने सोशल मीडिया बैन पर आपत्ति जताई थी, किसी ने भी इसको समर्थन नहीं किया था। यद्यपि केपी ओली ने अब उसको कानूनी प्रक्रिया को हवाला देते हुए उसको बैन किया, लेकिन इस पर असंतुष्टि बहुत बड़े तादाद, हर एक पार्टी इस पर असंतुष्ट थे, हर एक पार्टी के युवा तबका इसको विरोध किए थे। इधर कल यूएमएल सहित नेपाली कांग्रेस सहित जितने नेपाल के 17 पार्टी के विद्यार्थी संगठन ने एक ज्वाइंटली प्रेस रिलीज जारी करके सोशल मीडिया बैन को तत्काल मतलब हटाया जाए कहकर कल विज्ञप्ति निकाले थे। इसमें आपको देखिएगा उस स्टेटमेंट में तो नेपाली गवर्नमेंट में जितने पार्टी हैं हर एक पार्टी के यूथ संगठन है, और इस तरह से सरकार पर सोशल मीडिया को लेकर प्रेशर जबरदस्त था, लेकिन सरकार ने इसको अटेरी जैसा कर रहा था। हमको लगता है कि आज के घटना के बाद संभवतः अभी जस्ट न्यूज आ रहा है कि नेपाल में फेसबुक और मैसेंजर वगैरह सब खोलने की प्रक्रिया शुरू हुए है। कुछ लोगों ने फेसबुक अपडेट करना शुरू कर दिया है कि मेरा फेसबुक चलने लगा, मेरा सोशल मीडिया चलने लगा है, लेकिन वो अच्छा से अभी काम नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि संभवतः आपको 1-1.5 घंटा या शाम तक में नेपाल में सोशल मीडिया ओपन होना चाहिए। जी, तो फिर ये इंडिकेशन भी आ रही है कि ओली गवर्नमेंट अपना ये स्टेप वापस ले सकती है। इज द इंडिकेशन दैट्स आल्सो कमिंग ऑन द ग्राउंड गिवन द एस्केलेशन ऑफ दीज प्रोटेस्ट। आई एम जॉइंड बाय संतोष गिरी आल्सो ऑन द ब्रॉडकास्ट। ही इज वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स ऑन द ग्राउंड इन Kathmandu. Santosh, thank you for joining us on CNN News 18. What is the situation on the ground? We are also getting reports that 9 people have lost their lives in police firing, and there is a lot of pressure on the Oli government, which is now headed for a cabinet meeting. Actually the situation here is quite distressing. A lot of the forces has been deployed
and the youth are being the protesters are being suppressed by the government. Actually, the situation here is quite chaos. Right. And Santosh, what are your main demands beyond the removal of this ban? Do you want the Oli government do you want KP Oli to resign as Prime Minister? No, actually, this is not only about Oli or other leaders. It's all about, we are looking, the Gen Z is looking for the transparency. Nepal is a country of young population with more than half of our population with under 30 years of age. So these young people are seeking the opportunities in their homeland rather than being migrated to other countries in the name of education, whether it be in the name of education or whether it be in the name of employment. The first thing. The second thing is the younger people is demanding for the accountability. The younger people is demanding for the leadership with the transparency. And these are the things that is what younger people are looking for right now. The recent decision made by government to ban several social media that has also played a very negative role on provoking the young people. Right. And Santosh, how do you react to those charges coming in from not just the Oli government but his supporters as well, that your protests have been hijacked by opposition parties and the pro-monarchy groups? No, actually, it is completely a different protest. Young people, as I already said, as I already mentioned, the younger people here in Kathmandu, they are here in Kathmandu and Nepal, they are looking only for the opportunity. They want to create Nepal as a land of opportunity rather than the country which is renowned for exporting its younger population to other countries. The first thing. The second thing is they want to create. They are demanding for accountability. They are demanding for transparency. They are against the corruption. So it is not something like it is hijacked by some other people. We are stick to our own agendas. As we know, these people who are in opposition right now, they also rule to us. And those people who are ruling us, they were in the opposition in the back. So, right. So in this particular game, our particularly this Gen Z movement will not be tricked by all these people. Right? That is what we believe. Right. And just very quickly, if the Oli government refuses to budge, how long are you likely to continue your protest? Actually, this was the very first moment that we started today. I fall into the different category. Gen Z, I have been supporting them as an advisor, as a supporter. So basically, today it was a very first day. We decided to do this for the first time as a symbolic protest, and we will see how it goes. Today evening, the leaders, all these leaders, Gen Z leaders, would gather together and decide agendas for the upcoming days. So it was a single day event for today, but the government has tried to expose to the younger people, it has created a lot of chaos, and the people are more into aggression to fight with the government. So I don't think it would be stopped very soon, but the decisions will be made by today evening. Right. Thank you, Santosh, for joining us on the broadcast and giving us your perspective on the entire matter. So a lot of political pressure on the Oli government. And our top story, protests have erupted after a ban on social media in Nepal. Agitations continue in Maitighar, Kathmandu and other major cities across the country. Nepal has imposed a ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and more than a dozen social media sites after accusing them of failing to comply with regulations. Tension spread in the Nepal Parliament complex as well when protesters broke the police barricades as chaos continues on the streets. नेपालका नाम कहलिएका ठुला बुद्धिजीवी हौं भन्नेहरू के भन्ने आँट गर्दैनन् भने विचराहरूको यो हामी हुन त सिमानाको छलफल सार्वभौम सत्ताको छलफल स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको छलफल गरिरहेका छौं नि
मान्छे पहिले आफै स्वतन्त्र छैन, आफ्नै खोपडी स्वतन्त्र छैन, आफै चिन्तन स्वतन्त्र ढङ्गले चिन्तन गर्न सक्दैन भने अनि त्यसले स्वतन्त्रता कहाँबाट स्वतन्त्र ल्याउँछ? अलि घाक बुद्धिजीवीहरूको एउटा घाक पत्रिकामा आज एउटा इन्टरभ्यू देखाएको थिएँ मैले, भव्य तस्बिर समेत, व्यक्तित्ववाला तस्बिर समेत आएको थियो। मेसेज बुझ्न नसक्ने, मेसेन्जरमाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने तुकबन्दी कस्तो राम्रो छ। मेसेज नबुझ्ने, जनताको मेसेज नबुझ्ने, मेसेन्जरमाथि हमला गर्ने भन्ने क्या बौद्धिकता प्रकट भएको छ त्यहाँ। And I'm joined by Mr. Jitendra Jha, a journalist from Nepal, to get the latest from Ground Zero. Jitendra जी, और क्या जानकारी है आपके पास? अभी सिचुएशन ग्राउंड जीरो पे कैसी है? जो प्रोटेस्ट सुबह से हो रहा था काठमांडू में वो और तनावपूर्ण हो गया है, और जो अभी तक जानकारी मिली है, कमती में 4 लोगों को गोली लगा और उनको मृत्यु हुई है, ऐसा खबरें आ रही हैं। जो संसद भवन है उसके आगे ही सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर पुलिस ने टीयर गैस प्रहार किया, वहाँ पर कुछ तनाव का माहौल है। वैसे ही ट्रॉमा सेंटर जो वीर हॉस्पिटल है वहाँ का, काठमांडू का बहुत बड़ा वीर हॉस्पिटल, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। तो ट्रॉमा सेंटर में वहाँ जो कुछ घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उन लोगों को वहाँ पर ले जाया गया है। और वहाँ पर अभी तक कमती में या कहें अभी तक जो जानकारी मिली है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा जानकारी मिला है। जी, और जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि 7 डेथ्स हो चुकी हैं इन क्लैशेस में। नेपालीज पार्लियामेंट में अभी सिचुएशन कैसी है? क्या वहाँ से प्रोटेस्ट क्लियर हुए हैं? पार्लियामेंट के एरिया जो है वहाँ पर नेपाली सेना को खटाया गया है, और पार्लियामेंट के गेट पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वहीं पर जो है प्रहरी ने ज्यादा बल प्रयोग किया और नेपाली सेना को वहां पर लाया गया, कर्फ्यू लगाया गया। तो इससे जो है स्थिति कंट्रोल करने का सरकार प्रयास कर रही है। पर जैसे ही ये गोली चलने की घटना बाहर आया तो जो प्रदर्शनकारी है और वो और उग्र हो गए, और जो उस एरिया में जो प्रोटेस्टर्स थे वो जो है अपने अपने जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार उस जगह को खाली कराने का प्रयास कर रहा है, पर जैसे ही ये गोली चलने की घटना आई, टीयर गैस वगैरह प्रहार का आया, तो उससे जो है आक्रोश एक तरह से और बढ़ा है, और स्थिति जो है और तनावपूर्ण या कहें तनावग्रस्त हो चुका है। Right, so massive deployment outside Parliament where the Nepalese army has been deployed. Also reports suggest that 7 people have died as firing continues in different parts of the country as the agitation continues. जितेंद्र जी, ये भी बताइए, ये बहुत सारे हम प्लैकार्ड्स देख रहे हैं, Gen Z agitation, Gen Z protest ये हो रहा है नेपाल में। ये कौन से स्टूडेंट ग्रुप्स है और क्या इनके प्रोटेस्ट के पीछे ऑपोजिशन पार्टीज का हाथ है? देखिए, ऐसा इसको समझ सकते हैं कि इसमें एक ही ऐसा ये ग्रुप या एक पार्टी या एक कोई क्लब या कोई एक ग्रुप है, ऐसा नहीं है। ये जो है सोशल मीडिया बैन होने के बाद जो आहत हुए, जिनको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस मुद्दे पर सरकार जो है गलत निर्णय किया, ऐसा लगने वाले लोगों का एक ये समूह है। तो ये इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी है या अपोजिशन है, बल्कि ये जो लड़के जो आए हैं, जो ये जेनजी पुस्ता, इन लोगों ने कहा था कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ सकते हैं, पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा, अपना पॉलिटिकल जो है नारा, अपना पॉलिटिकल झंडा लेकर मत आइए, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें अपना राजनीतिक जो है मत लाइए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कोई पॉलिटिकली किसी निश्चित पॉलिटिकल पार्टी का ये अभियान नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जो नए पुस्ता है, जो इंटरनेट से संबंधित है, जिनको लगता है कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हमें अपना जो वाक स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी जो बहाली होनी चाहिए। तो ऐसा राय रखने वाले जो हैं पुस्ता जेन जी, ये आंदोलन का आह्वान किए थे कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण होगा प्रोटेस्ट। पर ये प्रोटेस्ट संसद भवन, माइती घर से संसद भवन की ओर जाती है, संसद भवन के भीतर भी प्रोटेस्टर्स इंटर करते हैं, वहां पर जो है तनावपूर्ण अवस्था बनती है, रबर की कुछ गोलियां प्रहार हुई हैं, जर्नलिस्ट वगैरह घायल हुए हैं। और अब जो वीर हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर
घायलों को ले जाया गया है, ऐसा जानकारी हमें मिला है। तो अभी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए संसद भवन के इर्द गिर्द राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और जो सुरक्षा के लिए संवेदनशील जगह है उस जगह पर सरकार ने रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू आदेश जारी किया है स्थानीय प्रशासन ने। Right, so curfew will be imposed till 10 p.m. That is the order so far, and as Jitendra Jha is telling us, this is anger against the Nepalese government for cracking down on the freedom of expression, and these are a motley of student groups who have been mobilized across the country. So far, it doesn't seem that there is a political hand behind these protests. But my colleague Akanksha Swaroop spoke to Khushbu Oli, a leader of Nepal's opposition party, the Rashtriya Prajatantra Party. Listener. What's your understanding of this kind of Gen Z anger that we are seeing brew on the streets of Kathmandu? I think for the first time, youths of this generations have been politically aware. Earlier, when we used to talk about politics or we used to encourage them to join politics, we always heard that politics is a dirty game and I don't know about politics. But today, I think the Generation Z youth in Kathmandu have taken to the streets, and the government's, it's due to the government's continuous failures, corruption, misgovernance, and disregard for the voices of the public and the youth. So I think they're faced with a lot of, threats to their education, employment, and future opportunities, and witnessing inequality in politics and outside politics, in the administrations as well. I think so that's why they could not remain silent. And recently, with the curve in the social media, this protest has come out not just as anger, but I think it's an awareness, a demand for sustainable change and accountable government in the country. While the government has imposed bans on restrictions on social media, claiming it to maintain order, I think it is ironic that the prime ministers have been using it, the leaders have been freely using the same platform. So I think it's for fueling the public frustration that the bans were only for the public. And, I think it further pushed the youth to streets demanding transparency, accountability, and, the lift on the ban of the social media. I want to bring you in on how strongly this kind of protest is also reminiscent of what we had seen a few years ago in Hong Kong, where the youth had taken to the streets and they were also against the sort of crackdown on freedom of speech and expression. But you being part of the political spectrum in Nepal, what have you been observing under the regime of the KP Sharma Oli government? Many youth that we have been interacting with have been very vocal about how there is this conscious crackdown when it comes to freedom of speech and expression. Also, many are saying that why is TikTok being given a different treatment when it comes to these banning of the social media platforms, 26 of them in all. TikTok was banned earlier during Prachanda's government. It was banned. So after they, I think, registered, the ban was lifted. And at that time also the public had expressed a lot of distress over it. Meanwhile, during this protest, I think, I can sense dictatorship. Whether it was RPP's demonstration, Rashtriya Prajatantra Party's demonstration against corruption a few months back, there was a huge infiltration by the government to stop the demonstrations. Why do you say so? Why do you say so? Because we have seen, because it was just a peaceful demonstration, and just today, there are youths, there are kids. My children are there in the protest. 3 of my children have gone to the streets, and they all were clearly, very clear that it's going to be a peaceful demonstration. They are going to chant slogans. They are going to, try to aware the government about what is going wrong. But during the protest, what we could see from outside is the government selectively allows certain agitators to infiltrate the spaces like the parliament. Have you ever seen any demonstration, no matter how big of a party has led it, have you ever seen them reaching close to the parliament? Right, so those are the scenes coming in from Kathmandu, ladies and gentlemen, as several student groups have been mobilized against the Oli government in Nepal after the government's ban on at least 26 social media platforms. And more breaking news that's coming in. 42 people have been injured as per reports as the violent demonstrations continue. And reports also suggest that firing has taken place in Kathmandu, where reports suggest that 7 people have lost their lives.
in police firing, and the curfew will now be in place till 10 p.m. Tonight. That is the current order, as the Nepal army has also been mobilized outside the parliament to safeguard parliament. To get more details from ground zero, Jitendra Jha continues to be with us on the broadcast, reporting from Kathmandu. Jitendra ji, ये पूरे सिचुएशन को देख के आप अभी भी कह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन हुआ है ग्राउंड पे, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ नहीं दिख रहा, पर केपी ओली की पोजीशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? केपी शर्मा ओली ने सीपीएन-यूएमएल जो उनका नेकपा एमाले सीपीएन-यूएमएल जो उनका पॉलिटिकल पार्टी का एक इंटरनल प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया को हम कानून के दायरा में लाना चाहते हैं, नेपाल के में दर्ता होने के लिए जो कह रहे हैं, तो कानून के दायरा में लाने के ये जो हम कदम चाल रहे हैं, इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अवरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे जो उनका एक स्वभाव है कि कथा और विभिन्न स्टोरीज से बताया कि कैसे जो है इंटेलेक्चुअल्स जो है सरकार के इस कदम को विरोध कर रहे हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने टारगेट किया इंटेलेक्चुअल्स को, और जो जेन जी जनरेशन है जो कह रहा है कि ये गलत है, उनको भी केपी शर्मा ओली जी ने कहा कि ऐसा आप समझ नहीं रहे हैं कि हमने क्यों किया ऐसा करके। तो एक ये प्रधानमंत्री की ओर से भी इसको सरकार अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रयोग किया। अब इससे क्या हुआ, तो जो सहज स्थिति बनना चाहिए था, सरकार जो है इसको संबोधन करना चाहती है, सरकार जो है संवेदनशील है, ये मैसेज नहीं गया। तो एक उनका जो भाषण है ये भी इस अभी जो देखने को मिल रहा है कि जो उससे जो है वो उत्तेजित हुए और जो प्रोटेस्ट का एक माहौल बना। अभी जो माहौल क्या है कि पोखरा में, विराटनगर में भी प्रोटेस्ट हुआ है, पोखरा में भी कर्फ्यू लगा है। आपको मालूम ही होगा, पोखरा जो है एक नेपाल का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर जो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर भी काठमांडू जैसा ही माहौल बनने की कगार पर है। वहाँ पर भी यूथ ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर भी सरकारी जो ऑफिस हैं, सरकारी जो संयंत्र है, उसकी सुरक्षा के लिए कह के सरकार ने कर्फ्यू जारी किया है। जी, और जितेंद्र जी ये भी बताइए कि अभी इस प्रोटेस्ट का आगे का रास्ता क्या है? इसका एस्केलेशन तो हो ही रहा है अक्रॉस द नेशन ऑफ नेपाल, ये बाकी सिटीज़ में भी स्प्रेड कर रहा है। अगले 2-3 दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एस्केलेट ही होने वाला है? क्या प्लान्स है कि और फोर्सेस ग्राउंड पे मोबिलाइज हो ताकि एक सीरियस क्रैकडाउन हो जाए? अभी भी पुलिस फायरिंग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आपने हमें बताया कि 7 लोगों की मौत हो गई है ग्राउंड पे। इसका आगे जाके गेम प्लान क्या है गवर्नमेंट का? जितेंद्र झा, कैन यू हियर मी? आगे जो नेपाल में जो महानगर है, जो मेट्रो सिटी है, वहाँ पर ये प्रदर्शन बढ़ेगा। जैसे पोखरा और काठमांडू में देखने को मिला, तो विराटनगर में और विराटनगर जैसा अन्य जो मेट्रो सिटी है नेपाल के, जो महानगर एरिया है, वीरगंज है, अन्य जो है, तो इन जगहों पर जो है प्रोटेस्ट बढ़ने की संभावना है। और जहाँ पर कैंपस है, जहाँ पर ज्यादा जो स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर जो है एकजुट हो सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जो सहज तरीका से आ सकते हैं, तो उस जगह पर जो है प्रोटेस्ट होने की संभावना अब बढ़ती दिख रही है। क्योंकि जैसे प्रहरी प्रशासन की तरफ से गोली चलाया गया, प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई है, तो इससे जो है सरकार के विरोध में जो एक अवस्था बन रही थी, वो जो है विरोध फूटने की आसार दिख रही है। जी, और हम ये भी देख रहे हैं कि नेपालीज पार्लियामेंट भी मोबिलाइज हो चुकी है, ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तो है। या प्लीज गो अहेड। अवस्था को देखते हुए कैबिनेट की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आकस्मिक बैठक, इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने अभी बुलाया है कि ये विषय को कैसे हैंडल किया जाए। जो अभी काठमांडू में जो नियंत्रण करने के प्रयास के बावजूद भी नियंत्रण नहीं हो रहा है, ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, इसमें इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो इसके लिए जो है अभी कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया है और लगता है कि कुछ डिसीजन
अभी काठमांडू की जो असहज अवस्था है, काठमांडू में जो तनावपूर्ण अवस्था है, उस तनावपूर्ण अवस्था के लिए सरकार कुछ डिसीजन कर सकता है। पर ये देखना होगा कि क्या सरकार पीछे हटती है या सरकार जो है जिस तरीके से बैन किया है 26 सोशल मीडिया साइट्स, तो उनको जो है निरंतर रखता है। Absolutely. We'll have to wait and see what plays out in the wake of that cabinet meeting, that emergency meeting of the Nepalese cabinet.